کو بتائیں کہ باغوں کے شہر میں فضائی آلودگی کے ڈیرے برقرار ہیں۔ حکومتی سطح پر اسموگ کو کنٹرول کرنے کے اقدامات بھی بے سود ثابت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق فی الحال شہر میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ثانیہ سعید کی رپورٹ دیکھیے۔ چھٹی کا روز، سڑکوں پر ٹریفک کم، پھر بھی فضائی آلودگی برقرار۔ شہر میں اوس ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے بھی تجاوز کر گیا۔ مال روڈ، جے روڈ اور ڈی ایچ اے کے اطراف AQI 300 سے بھی اوپر ریکارڈ۔ لاہوری آلودہ فضا میں سانس لینے پر مجبور ہیں۔ اسموگ کے باعث ناک، کان، گلے اور پھیپھڑوں کے امراض تیزی سے پھیلنے لگے۔ نگران پنجاب حکومت کے اسموگ کے تدارک کے لیے اقدامات بھی کام نہ آئے۔ سماج لاک ڈاؤن اور اسموگ ایمرجنسی بھی سود مند ثابت نہ ہوئی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 8 جبکہ زیادہ سے زیادہ 23 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ فی الحال شہر میں بارش کا کوئی بھی امکان نہیں۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش نہ ہونے کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ شہری اسموگ کے اثرات سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ یہاں بھی آپ کو بتائیں کہ انڈوں کی قیمت کو بریک نہ لگ سکی۔ فارمی انڈے مزید 1 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 340 روپے تک جا پہنچی ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,080 روپے میں فروخت۔ مرغی کا گوشت 5 روپے سستا، فی کلو قیمت 458 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام بھی 3 روپے فی کلو کم ہو گئے۔ زندہ برائلر ہول سیل 304، پرچون ریٹ 316 روپے کلو مقرر۔ آپ کو بتائیں کہ انڈوں کی قیمت کو بریک نہ لگ سکی۔ فارمی انڈے مزید 1 روپے مہنگے ہو چکے ہیں۔ فی درجن قیمت 340 روپے تک جا پہنچی ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,080 روپے میں فروخت ہے۔ مرغی کا گوشت بھی 5 روپے سستا، فی کلو قیمت 458 روپے ہو گئی ہے۔ زندہ برائلر کے دام بھی 3 روپے فی کلو کم ہو گئے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری محکمہ میں جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں کمی لیکن انڈوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا۔ انڈوں کی قیمتیں گزشتہ روز بھی بڑھائی گئی تھی۔ آج مزید 1 روپے اضافے کے بعد جو انڈوں کی قیمت ہے سرکاری ریل اسٹور میں وہ 340 روپے فی درجن مقرر کی گئی ہے۔ ہول سیل مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 10,080 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے لیکن پرچون مارکیٹوں میں شہریوں کو انڈے 350 روپے فی درجن تک فروخت کیے جا رہے ہیں اور فی انڈا شہریوں کو 30 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے، جس پر شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈوں کی قیمتیں غیر معمولی سطح پر پہنچ چکی ہوئی ہیں۔ ایک عام شہری کے لیے انڈوں کی خریداری وہ مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ موسم میں تبدیلی کے بعد انڈوں کی کھپت بڑھ جاتی ہے لیکن حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے انڈوں کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا۔ صرف سرکاری نقطوں کے اجراء پر قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے لیکن سپلائی اور ڈیمانڈ کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ برائلر کی قیمت 5 روپے کمی کے بعد 458 روپے فی کلو مقرر کی گئی جو کہ اب بھی 450 روپے فی کلو سے زائد کی سطح پر ہے، جبکہ زندہ برائلر کی قیمت میں 3 روپے کی کمی ہوئی ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 304 اور پرچون زندہ برائلر کی قیمت 316 روپے مقرر کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے عبدالقادر، بہت شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور اس کے نواحی علاقوں میں دھند زور پکڑنے لگی۔ حد نگاہ کم ہونے کے باعث موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 لاہور سے شیخوپورہ، موٹر وے M3 فیض پور سے درخانہ تک بند ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے بھی حد نگاہ کم ہونے کے باعث بند ہے۔ ہمارے نمائندے شاہزیب شہزاد اس وقت بابو صابو موٹر وے پر موجود ہیں۔ جی شاہزیب، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں بابو صابو موٹر وے انٹرچینج پر۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے موٹر ویز کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ لاہور اور اس کے نواحی علاقوں میں دھند اپنا زور پکڑتی دکھائی دے رہی ہے اور شہریوں کی سہولت کے لیے موٹر ویز کو بند کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں کہ M2 کو لاہور سے شیخوپورہ تک دھند کے باعث بند کیا گیا ہے جبکہ M3 فیض پور سے درخانہ تک بند کر دی گئی ہے۔ موٹر وے لاہور سیالکوٹ موٹر وے پورے طریقے سے بند کر دی گئی ہے جبکہ موٹر وے M5 شیر شاہ سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی ہے اور شہریوں کے لیے ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ مناسب فاصلہ دوسری گاڑیوں سے برقرار رکھیں تاکہ حادثات سے بچ سکیں۔ جو شہری اس وقت ابھی بھی موٹر وے کے اوپر سفر کر رہے ہیں ان کے لیے ہدایات ہے کہ وہ ہیلپ لائن 130 سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ فوگ لائٹس کے استعمال کو یقینی بنائیں تاکہ کوئی افسوسناک واقعہ رونما نہ ہو۔ موٹر وے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسے ہی دھند میں کمی ہوگی موٹر وے کو پھر سے کھول دیا جائے گا کیونکہ ابھی بھی موٹر وے پہ مختلف مقامات پر حد نگاہ 100 فٹ تک بتائی جا رہی ہے۔
शाहद तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सर्दी आते ही गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा हो गया। शहरियों ने गर्म मलबूसात के हसूल के लिए लंडे बाजार का रुख कर लिया है, जबकि शहरी लंडे बाजार में भी महंगाई का शिकवा करने लगे। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन अली। सर्दी आते ही गर्म मलबूसात की मांग में इजाफा। शहरियों ने गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए लंडे बाजार का रुख कर लिया। बड़ी तादाद में शहरी गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ, जबकि शहरी वहां भी महंगाई का शिकवा करते नजर आए। शहरियों का कहना था कि गर्म मलबूसात की कीमतों को भी पर लग गए। पिछले साल सर्दियों में 1000 में मिलने वाली गर्म जैकेट इस साल 3500 रुपए तक जा पहुंची। दूसरी जानब दुकानदार भी पीछे से महंगी चीजें मिलने का शिकवा कर रहे हैं। शहरियों की जानब से हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया गया है। मौसम सर्द होते ही मछली की फरोख्त भी बढ़ गई। महंगाई के असरात मछली मंडी तक जा पहुंचे हैं। आम मछली कम से कम 500 रुपए फी किलो तक मिल रही है। खरीदार महंगाई का शिकवा करते दिखाई देते हैं। मौसम सर्द होने से मछली मार्केट की रौनक बढ़ गई, ताहम महंगाई के असरात मछली मंडी तक भी पहुंच गए हैं। गुज़िश्ता सीजन की निस्बत मछली की कीमतों में 50% तक इजाफा हो गया। काला रहू फार्मी मछली 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। काला रहू देसी मछली 800 रुपए फी किलो है। सोल मछली 1800 रुपए फी किलो तक बेची जा रही। मलही मछली 600 से 700 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। थैला मछली 450 और चिड़ा मछली 200 से 400 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। अवाम कहते हैं मछली खाना अब आसान नहीं रहा, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। जी मछली है कि पिछों महंगी आ रही है। बस आजकल पिछले साल 100 रुपया महंगी आ रही। इस समय जी 300 रुपए किलो मछली थी, 400 रुपए किलो मंडी। मार्केट ज़राए के मुताबिक एक बरस में दीगर अशिया की तरह मछली की पैदावारी लागत में भी इजाफा हुआ है, इसलिए इसके निर्खों में भी इजाफा देखा जा रहा है। महंगाई ने शहरियों का जीना दो भर कर दिया है। सब्जियां और फल मनमाने निर्खों पर फरोख्त होने लगे। अदरक और लहसुन 850, प्याज 220, टमाटर 150, सब्ज मिर्च 130 रुपए फी किलो में दस्तयाब है, जबकि मटर 280, शिमला मिर्च 220, बंद गोभी 160, आलू 110 रुपए फी किलो में बिकने लगे। अनार बादाना 950, अंगूर 500 से 380, अमरूद 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। आपको बताएं कि सब्जियां और फल मनमाने निर्खों पर फरोख्त होने लगे हैं। अदरक और लहसुन 850 और दीगर अशिया में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इसी वाले तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस हवाले से? आज बिल्कुल मार्केट में प्याज और टमाटर की कीमतें जो है गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगी हैं और खुसूसी तौर पर प्याज की कीमत जो है वो गुज़िश्ता 2 रोज से जो है मुसलसल बढ़ रही है। आज भी मजीद 10 रुपए का इजाफा किया गया है और सरकारी रेलिस में प्याज 180 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। ये दर्जा अव्वल के प्याज की कीमत है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का प्याज जो है 220 से 240 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 5 रुपए महंगे करके 105 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन मार्केट में टमाटर 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह लहसुन जो है वो सरकारी रेलिस में 610 रुपए है, लेकिन फरोख्त 850 रुपए फी किलो तक किया जा रहा है। अदरक की कीमत 600 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन अदरक भी 850 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टिंडे फार्मी 84 के बरस 150 रुपए, आलू 65 के बरस 110 रुपए, मेथी 100 रुपए के बरस 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। खीरा 3 रुपए महंगा करके 70 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक खीरा फरोख्त किया जा रहा है। फूल गोभी 68 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जबकि मटर जो है वो 155 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में, लेकिन मार्केट में 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की सरकारी रिलीज में बाजार किसी फल की कीमत में इजाफा तो नहीं किया गया, लेकिन जो सरकारी रिलीजों में दर्ज कीमतें उन पर अमल दरामद भी नहीं कराया जा सका। सेब 265 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 380 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 125 के बरस 160 रुपए दर्जन तक और केला दर्जा दोम जो है 95 के बरस 120 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी नकनामों के बरस महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल कादिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। जानलेवा महंगाई और हुकूमत की तरफ से शहर में चिंची रिक्शे बंद करने का मामला अवामी रिक्शा यूनियन की जानिब से प्रेस क्लब के सामने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। जानलेवा महंगाई और चिंची रिक्शे बंद करने का मामला
अवामी रिक्शा यूनियन प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज बन गई। निगरान हुकूमत के खिलाफ गरीबों को बेरोजगार करने के नारे लगाए गए। अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी का कहना था, महंगाई और बेरोजगारी ने गरीबों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया है। हुकूमत चिंची रिक्शे बंद करने से पहले इन अफराद को मुतबादिल रोजगार और आवाम को सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करे, वरना किसी सूरत चिंची रिक्शों को लाहौर में बंद नहीं होने देंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम चिंची रिक्शा बंद कर देंगे। बंद ना करें, इनको रेगुलेट करें। जो एसओपीज पे पूरा उतर है उसे भी, जो नहीं उतर है, जो रोड पे चल रहा है उसको भी, और जो कम उम्र बच्चों पर आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं ये मत करें। जुर्माना कर दे, रक्षा 72 घंटे के लिए बंद कर दे। जो वन वे की खिलाफ वर्जी करे उसका रक्षा बंद कर रहे हैं। हम आपसे तामन करने के लिए तैयार हैं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था, अगर चिंची रिक्शों को बंद किया गया तो अपने बच्चों को किस तरह पालेंगे? कौन आदमी है जो अपने बच्चों को भूखा मरता हुआ देखेगा? अगर हुकूमत ने ये फैसला ये इस पे अटल रही, इन्होंने रक्षा बंद कर दिया तो ये गरीब लोग किधर जाएंगे? ये मजबूरी में जराइम करेंगे, ये क्राइम करेंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ SOPs मुरतब करे ताकि उसके तहत जो रक्शे चलाए जा सके। रक्शे बंद करना इसका कोई हाल नहीं है। अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी का कहना था, चिंची रिक्शों को बंद किया गया तो हम वजीर आला हाउस के बाहर जाकर धरना दे देंगे। कैमरामैन अयूब के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब का तारीखी इक़दाम, महकमा ट्रांसपोर्ट ने चिंची और दूसरे रिक्शों की फिटनेस को यकीनी बनाने के लिए रिलीफ फराहम कर दिया। तमाम रिक्शों को 2 जनवरी 2024 तक आए जुर्माना से इस्तिस्ना दे दिया गया है। बरवक्त फिटनेस करवाने वालों को लेट इंस्पेक्शंस में छूट दे दी गई है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद जुर्माना शुरू हो जाएगा। हुकूमत पंजाब ने रजिस्टर्ड चिंची और दीगर रिक्शों को 2 जनवरी तक जुर्माने माफ़ कर दिए हैं। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी का कहना है कि रिक्शा मालिकान को नादिर मौका फराहम किया गया है कि वो बर वक्त फिटनेस करवा के जुर्माने से मुस्तस्ना हो जाएं। इस इक़दाम से स्मोक और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि हमारा वापसी का सफ़र शुरू है। मुद्दत मुकम्मल होने पर घर रवाना हो जाएंगे। अगला वज़ीर आला इंशाअल्लाह बेहतर काम करेगा। यूरिया खाद के मामले पर निगरान वज़ीर आज़म से बात की है। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड प्रोजेक्ट के दोनों पैकेजेस का दौरा। सगियां से न्याजी चौक और बाबू साबू से सगियां तक पूरे रूट का तफसीली मुआयना किया। वज़ीर आला का पैकेज 1 पर काम की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार, पैकेज 2 पर काम को तेज करने की हिदायत। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी का कहना था कि इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के हवाले से वज़ीर आज़म से बात हुई है। वज़ीर आज़म ने वफाकी वज़रा को खाद की फौरी दस्तयाबी के हवाले से हिदायत जारी कर दी हैं। 20 दिसंबर से हमारी बंदरगाह पर 2 लाख टन इजाफी यूरिया खाद पहुंच जाएगी। यूरिया के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। मामिया कॉलोनी वाले प्रोजेक्ट पे आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है। वो इसका नोटिस ले रहे हैं और इंशाल्लाह ताला वो भी पुश कर रहे हैं, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। प्लस प्राइम मिनिस्टर से यूरिया की खाद के ऊपर शॉर्टेज के ऊपर बात हुई है। उसके ऊपर भी उन्होंने फेडरल मिनिस्टरों के साथ मेरे सामने बात की है और बड़ा कंसर्न शो किया है। 2 लाख टन एक्स्ट्रा जो खाद है वो 20 दिसंबर से पोर्ट पे आना शुरू हो जाएगी। निगरान वज़ीर आला का मजीद कहना था कि हमारा वापसी का सफ़र शुरू है। अगला वज़ीर आला इंशाअल्लाह बेहतर काम करेगा। हुकूमत पंजाब 50 से $60 खर्च करके फ्रीलांसर्स की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करवाएगी। मैं भी, मीर साहब भी, सारे हम अब मेरे ख्याल अपने काम को वापस जाने का सफ़र है और वो करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो भी अगला आएगा वो इससे बेहतर करेगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को प्रोजेक्ट पर होने वाली पेशरफ्त के बारे में ब्रीफिंग दी गई और बताया गया कि दोनों पैकेजेस से मुंसलिक 9 सबवेज पर पूरी रफ्तार से काम जारी है। तो खबर यह है, इस्तेहकाम है पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला। IPP की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त नून लीग के हवाले की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। IPP और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला। IPP की कमेटी ने सीट एडजस्टमेंट के लिए हलकों और उम्मीदवारों की फहरिस्त मुरतब कर ली। ज़राए के मुताबिक इसाक खाकवानी, ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियार पर मुश्तमिल कमेटी ने पार्टी क़यादत और रहनुमाओं की मुशावरत से फहरिस्त तैयार की। IPP की क़यादत आज रात तक सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त मुस्लिम लीग नून की कमेटी के हवाले करेगी। कौमी असम्बली की 20 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की फहरिस्त मुस्लिम लीग नून के हवाले की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली के 19 हल्के पंजाब और 1 कराची से है। IPP पंजाब असम्बली
के 44 हलकों में सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिशमंद है। मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली के जिन हलकों से सीट एडजस्टमेंट से माजरत करेगी, इन हलकों में सूबाई सीटों पर एडजस्टमेंट की डिमांड की जाएगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के फैसले की तौसीक कर दी गई थी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर खान तरीन से इफ्तिखार गिलानी और मोहम्मद शाह खग्गर ने मुलाकात की। जहांगीर तरीन का कहना है कि IPP इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। जहांगीर तरीन से इफ्तिखार गिलानी और मोहम्मद शाह खग्गर ने इंतखाबात की तैयारी पर भी तबादला ख्याल किया। मुलाकात के दौरान इसाक खाकवानी भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन का कहना था कि IPP इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए तैयार है। पार्टी रहनुमा भरपूर अंदाज से इंतखाबात की तैयारी करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं 40 साल से सियासत करने वाले आज भी अवाम में जाने से भाग रहे हैं। मियां नवाज शरीफ जब से लंदन से आए हैं पूछ रहे हैं मुझे क्यों बुलाया। पीपल्स पार्टी का कोई कारकुन ऐसा नहीं जिस पर मुजालिम ना हुए हों। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। NA 127 से पीपल्स पार्टी के मुतवक्के उम्मीदवार फैसल मीर की तरफ से मॉडल टाउन में मुनक्किदा वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि कुछ जमातें इलेक्शन से फरार चाहती हैं। शेरों का शिकारी लाहौर में बैठा तो सब गायब हो गए। लाहौर में आजकल शेरों का शिकारी बैठा हुआ है। कौन बैठा है? शेरों का शिकारी। सरदारी, सरदारी, सरदारी। और ये इसलिए सारे गायब हो गए। फैसल मीर का खिताब में कहना था कि नवाज शरीफ के हमसायों को साफ पानी मिलता है ना रोजगार, अब जीत हमारी होगी। कन्वेंशन से पीपल्स पार्टी के रहनुमा नायाब जान, राव सरफराज, खुरम फारूक और दीगर ने भी खिताब किया। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान से मराकश में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर समीम मलिक की मुलाकात हुई। बाहमी दिलचस्पी के अमूर मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब बलीगुल रहमान का कहना था पाकिस्तान और मराकश के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। आप इन ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में बिलखसूस तालीम, तिजारत और सियाहत में नई बुलंदियों तक लेकर जाएंगे। दोनों ममालिक के दरमियान स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने से तालीम के शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। गवर्नर पंजाब ने पाकिस्तानी सफ़ीर से वीज़ा के हसूल में मुश्किलात और ताख़ीर के मसले को हल करने के हवाले से भी बात की। समीम मलिक ने इस हवाले से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। पुलिस मुलाजमीन के हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दाम जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मज़ीद 9 मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए 17 लाख रुपए जारी कर दिए। FIR के इंदराज में ताख़ीर पर अफसरान की सरजनिश की। रिपोर्ट देखिए। पुलिस मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए इक़दाम। IG पंजाब ने मजीद 9 मुलाजमीन को 17 लाख रुपए जारी कर दिए। कांस्टेबल गुलाम अब्बास को बाजू के ऑपरेशन के लिए 3,20,000 रुपए दिए। कांस्टेबल मोहम्मद इत्तफाक को बेटी के इलाज के लिए 3 लाख रुपए जारी। कांस्टेबल कासिम अली शाह, नासिर जिब्रान और बाबर हुसैन को 2.5 लाख रुपए दिए गए। रिटायर्ड इंस्पेक्टर नज़ीर अहमद को आंखों के इलाज के लिए 1 लाख रुपए मिले। ASI फारूक अहमद को थैलेसीमिया से मुतासरा बेटी के इलाज के लिए 73,000 रुपए जारी किए गए। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG उस्मान अनवर की जेर सदारत RPO's कॉन्फ्रेंस हुई। IG पंजाब की FIRs के इंदराज में गैर जरूरी ताखीर पर अफसरान की सरजनिश। IG पंजाब का कहना था कि दरखास्त E-टैग और FIR के इंदराज में दानिस्ता ताखीर पर सुपरवाइजरी अफसरान से बाज पुरस होगी। थानों और पुलिस दफातर की इंस्पेक्शन के लिए सरप्राइज चेकिंग और स्पेशल ब्रांच रिपोर्टिंग बढ़ाई जाए। गैर कानूनी गैर मुल्कियों को रहाइश मुलाजमत देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। लाहौर समेत सूबे के तमाम अजला में ड्राइविंग लाइसेंस के बिला तातुल इजरा को यकीनी बनाया जाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड को लाइसेंसिंग सिस्टम मजीद फाल करने की हिदायत। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मजीद कहा कि शहरियों की तरफ से रिकॉर्ड तादाद में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के रुझान से सिस्टम पर पड़ने वाले बोझ के नकाइस दूर किए जाएं। मुगलपुरा ऑटो मार्केट के करीब सेवरेज लाइन में धमाका, 5 अफराद जख्मी हो गए। गुजरती गाड़ियों, मार्केट की दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके के बायस मार्केट की सेवरेज लाइन मुकम्मल तबाह हो गई।
मुगलपुरा ऑटो मार्केट के करीब सीवरेज लाइन में जोरदार धमाका गटरों में गैस भर जाने से हुआ, जिससे इलाके में खौफ व हरास फैल गया। धमाके के बायस 5 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी होने वालों में 23 साला अली रजा, 35 साला बिलाल और बिलाल अहमद, 45 साला आसिफ और 28 साला फरहान नसीर शामिल हैं। मार्केट की सीवरेज लाइन तबाह हो गई, गुजरती गाड़ियों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। मार्केट के सदर मियां इश्तियाक का कहना था कि जोरदार धमाके के बायस गटर के ढक्कन कई फीट तक हवा में उड़े। इतना शदीद धमाका हुआ है कि ये गटर के ढक्कन उठ के एक जगह थे नहीं, तकरीबन ये 110 दुकानें हैं और सारे ढक्कन दोनों साइडों पे एक ही टाइम पे धमाका इतना शदीद है कि कई किलोमीटर तक आवाज़ गई है। ऐनी शाहिदीन का कहना था कि यह धमाका गैस भरने के बायस नहीं हुआ। सीवरेज लाइन में जाली लगी है, बारिश का सारा पानी इन जालियों के जरिए ही गटरों में जाता है। धमाके के वक्त गटरों में गंदा पानी भी मौजूद नहीं था। बहुत जोरदार धमाका हुआ है, लेकिन बज़ाहिर ये लोग बता रहे हैं कि ये गैस का धमाका है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि गैस वो जो पानी अगर सड़क का गटर में जा रहा है तो गैस भी खारिज हो सकती है वहाँ पे। ये गाड़ी हमने इधर खड़ी की थी तो मोटरसाइकिल ख़रीदने आए थे, तो मोटरसाइकिल ख़रीद रहे थे तो 2 मिनट बाद धमाका हो गया है। काफ़ी नुकसान हो गया गाड़ी का। मार्केट के दुकानदारों ने आला हुकाम से वाक़े की इंक्वायरी का मुतालबा किया। बल्दिया अस्मा लाहौर की खुसूसी स्क्वाड की तश्कील एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर ने चील गोश्त बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत कर दी। तफसीलात के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि शहर में चील गोश्त बेचने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। इस कारोबार में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी जगह पर चील गोश्त बिकने की सूरत में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर और जोनल अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी। जोनल अफसरान खुसूसी टीमों के हमरा चील गोश्त पॉइंट्स का खात्मा यकीनी बनाएं। चील गोश्त पॉइंट्स ट्रैफिक हादसात और बदनज़मी का सबब है। तमाम जोन MO रेगुलेशन को रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट जमा करवाएं। जिलानी पार्क में गुल दादू की रंगीनियां तहदे निगाह फूल ही फूल। जब किसी गुल पर एक जरा निखार आया, कम निगाह ये समझे कि मौसमी बहार आया। गुले दाऊदी खिज़ां और इब्तदाई मौसम सरमा का अहम और खूबसूरत फूल। जिलानी पार्क में सजी नुमाइश में शोख रंगों के फूल मरकज़ से निगाह बन गए। फूल मेले में गुले दाऊदी की सैकड़ों इकसाम रखी गई हैं। 35,000 से जायद पौधों और फूलों की मदद से दिलकश मंजरकशी की गई। छुट्टी के रोज शहरियों ने फैमिलीज के हमरा जिलानी पार्क का रुख किया। लोगों ने खूबसूरत फूलों के साथ सेल्फियां बनाई। जिलानी पार्क में नुमाइश के दौरान म्यूजिक और खानों के स्टॉल्स का भी एहतमाम किया गया। लोगों ने गुले दाऊदी की नुमाइश को एक खुशगवार एहसास करार दिया। कहते हैं ऐसी नुमाइश का एहतमाम होते रहना चाहिए। बहुत खूबसूरत गुले दाऊदी हैं और तरह तरह के इनमें बहुत सारे कलर्स हैं और भी बहुत सारे फ्लावर्स हैं। हर काइंड ऑफ फ्लावर आपको मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर यू कैन सी ओवर हियर। हमारे लाहौर के अवाम के लिए ये एक बहुत खूबसूरत एंटरटेनमेंट है और हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है और जिसमें